Hello, good morning, FI Become students. Am I audible? Hello, hello. Yes, ma'am. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, let's start. So, in the last week, we were discussing about that house organs, journals. Am I right? How to start the press Yes, or ma'am. how to prepare the press release. Am I right now? Yes or no? Yes, Or ma'am. if you have forgotten. Okay, now once again, we will start. What is press I release? Press release. What is press release? A press release is a printed news story. We will start. What is press release? The press release is a printed news story prepared by the organization and distributed to the media for the purpose of publicizing the organization's products, services, or activities. The press releases are sent to the editors in the hope that the editor will publish them in their magazines or the paper. The editor can publish the release as it is, rewrite or cut it as he or she pleases, and use it as a basis for different story and ignore it altogether. So press release क्या है? तो press release is a printed news story which is given by or which is prepared by the organization and which should be given for that publicizing and organization's product servicing and activities. Not means in short we can say that it is for advertisement. It is for advertisement. Do you understand what is press release? What is press release? Do you Yes, understand? ma'am. Okay, suppose if we want to make or if we prepare one story, okay, then we will go for the checking, and the teacher or someone else will recheck the story, and then some mistakes will be removed from the story. The same way, the press release is prepared by the organization for advertising practices and goods and practices and services, but after onwards, later on it should be given to the hand of editor. The editor will add something, or otherwise the editor will cut some points from that particular story according to him, according to his point of view. So it is called press release. Now the tips on the press release format and content. What is press release? The first point is write a genuine headline. It should be brief, clear, and to the point. Ultra compact version of the press release key point. The plenty of PR. Professionals recommended writing your headline in the end, after, and the rest of the release is written. If you follow the instructions, continue on the comeback to writing the headline once rest in the done. The headline is known as the eye catcher and it is very important to the whole release. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है that whenever we are going to write down that press release, whenever the means press release is written, then what is the first point? That genuine headline, because whenever we read the newspaper, that first of all our eyes catch the headline. Am I right? कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर किस पे जाती है? हेडलाइन पे जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, तो हेडलाइन की वजह से हमें एटलीस्ट जो पॉइंट है या जो कंसेप्ट है वो किस बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, वो समझ में आता है. So the headline should be very precise, clear and brief into the point. आगे बात करते हैं कि grab the attention. The news release headline should have the grabber to the attract the journalist, just as newspaper headline is meant to grab the reader. It may describe the latest achievement of the organization and the recent newsworthy event, new product or services. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि हेडलाइन क्यों बनाया जाता है? तो हेडलाइन इसलिए बनाया जाता है मीन्स इट attract the person, it attracts the consumer, it attracts the journalist. When we are talking about the press release, it is going to attract that journalist, and so it is called the headline should have that grabber. And
for the particular leaders. That here it also describes that achievement of the organization. अभी headlines में क्या होगा कि for example head means organizations ने क्या अचीव किया है, अभी उसका रिसेंट स्टेट क्या है, अभी वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, वैसा ही होता है. तो उसको हम बोलते हैं कि ग्रैब द अटेंशन. डू यू अंडरस्टैंड ना? डू यू अंडरस्टैंड ना? यस और नो? Yes, ma'am. कि जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पे सपोज कहाँ पे नया होटल ओपन हुआ है, तो उसके पहले हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसके पैम्पलेट बांटे जाते हैं या न्यूज़पेपर में उसके पैम्पलेट दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो तो वो हमको जल्दी से समझ में आता है या हम उसको देखने की कोशिश करते हैं. हाँ या ना? देखने की कोशिश करते हैं ना? अगर वो अट्रैक्टिव हो तो उसको देखने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ, वैसे आगे हम बात करते हैं हेडलाइंस रिटर्न इन द बोल्ड. अभी हेडलाइंस कैसा होना चाहिए? तो हेडलाइंस रिटर्न इन द बोल्ड. The bold headline also typically uses the large font size than the body copy. Conventional press release headlines use the present tense and exclude A and B as well as the forms of verb to be in the certain context. So here, whenever the headline is going to be written, it should be written in the bold letters and it will start. It means it is going to be presented in the present tense, and that whenever the headline is given, it will start with the A or B article. So यहाँ पे आपको ऐसा बताएगा कि हेडलाइन किस तरह से लिखना है. Then next point is first word capitalized. So whenever we study that whenever you start studying English, that rule is that the first letter should be capitalized, not should be, but the first letter must be capitalized. Am I right? So these are the very small points which we have to consider when we are writing something. That next point is extract important keywords. The simplest method to create the press release headline is to extract the most important keywords from your press release. From these keywords, try to frame the logical and attention-getting statements. If including summary sentences after the headline, the same rules apply. Using keywords early will give you better visibility in search engines, and it will be simpler for the journalists and readers to get the idea of press release content. Look at the attention in the first step and notice how every one of them could be press release headline. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया? एक्सट्रैक्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स. एक्सट्रैक्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मतलब क्या कि किस तरह से उसको क्रिएट करना है. कि फॉर एग्जांपल जैसे हम भी कोई भी प्रेस रिलीज लिखा जाता है, उसका हेडलाइन लिखा जाता है, तो उसका हेडलाइन उस प्रेस रिलीज से हम बोलते हैं कि मैचअप होना चाहिए. फिर बाद में बताया जाता है कि उसको हम बोलते हैं कि लॉजिकली उसको किस तरह से उसका स्टेटमेंट देना चाहिए. या फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, तो वहाँ पे कैसा बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, तो वहाँ पे कैसा बताया जाएगा. कौन सी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, तो वहाँ पे आपको हेडिंग कैसा दिखाई देगा? फेयर एंड लवली. समझ में आ रहा है? फेयर एंड लवली. डू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अगर हम बोलते हैं कि फेयर एंड लवली की जगह फेयर एंड हैंडसम, Yes, ma'am. तो फेयर एंड हैंडसम बताया जाए तो चलेगा क्या? फेयर एंड हैंडसम बताया जाएगा तो चलेगा क्या? कि फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली की एड बताएगी जो फॉर पर्टिकुलर हम बोलते कि लड़कियों के लिए है, तो वहाँ पे फेयर एंड हैंडसम का क्रीम बताया तो चलेगा क्या? या हम बोलते कि उसका हेडलाइन लिखा तो चलेगा क्या? नहीं ना? नहीं ना? हाँ या ना? हाँ या ना? No, ma'am. No, ma'am. नो. सो दैट इज द थिंग कि जब हम कोई भी मेथड लिखते हैं या मीन्स लिखते हैं या हम कोई हेडलाइन लिखते हैं, तो उस पॉइंट से उसका रिलेटेड होना चाहिए, जरा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. आगे दिखते हैं कि जब हम सेंटेंस एंड करते हैं हेडलाइन का हम सेंटेंस ऐड करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. तो अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल कि जब हम बोलते हैं कि उसके लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई वर्ड ढूंढते हैं, या हम बोलते हैं कि जैसे फ्रेज बताया जाता है, या कोई फॉर एग्जांपल जैसे आपको बचपन में जैसे स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन
कि स्टोरी सुनाने के बाद आपको बताया जाता है उसका हेडलाइन, या पहले ही बताया जाता है? स्टोरी सुनने के पहले बताया जाएगा या स्टोरी सुनने के बाद उसको बताया जाता है? कैसे बताया जाता है? उसका शीर्षक या हम बोलते हैं कि उसका हेडलाइन पहले ही बताया जाता है ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. पहले ही बताया जाता है। सो दैट इज द थिंग। आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट द बॉडी कॉपी। ये सेकेंड पॉइंट है। मैं आपको नोट्स भेज देती हूँ। दैट राइट द बॉडी कॉपी। The press release should be written as you want to as you want to appear in the news story. And remember this, the most journalists are very busy, don't have time to research your company's big announcement so much. If you want to write for the press release, it will be the journalist used in the write-up of your big event. Whatever you want them to say, this is where you put it. कि अभी आपको क्या बताया है कि जब आप प्रेस रिलीज लिख रहे थे, when you are going to write the press release, that it should be observed by, or the reader should be the journalist. That most of the journalists, they don't have a time to read blah 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 blah. So whatever they are going to do, that whenever you are going to write down the headline, that it should be precise, clear and very short, and clear message to the journalist, means it grabber अंडरस्टैंड, कि जैसे जब भी वो लिखा जाता है कि इसे इतना, मैं हम बोलते कि रिसेंट टाइम में कोई जर्नलिस्ट के पास इतना रिसर्च के लिए टाइम नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या इवेंट लिया, कौन सा अचीवमेंट लिया, कौन से साल में लिया है वगैरह, कुछ उनके पास टाइम नहीं होता है। तो वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब हेडलाइन ठीक से लिखा जाता है तभी वो समझ में आता है जर्नलिस्ट को। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. आगे बात करते हैं। उसमें Yes, ma'am. पहला पॉइंट है स्टार्ट विद द डेट एंड सिटी इन विच द प्रेस रिलीज originates. The city may be omitted, but if it will be confusing. For example, if the release is written in New Delhi about the event in the company's Mumbai division, तो जब भी प्रेस रिलीज लिखा जाता है तो उसके साथ डेट और उस सिटी का नाम लिखना जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल जब सिटी का नाम ओमिट किया जाता है तो वो जर्नलिस्ट के लिए क्या हो जाता है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, रीडर के लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल जब हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आपको उस रीजन का नाम या स्टेट का नाम बताया जाता है कि यहाँ पे ये घटना हुई। अगर हमको ये पता ही न चले कि वो घटना कहाँ पे हुई, तो वो जो न्यूज़ होगा वो हमारे लिए कैसा होगा? कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा? Whatever the information you are going to collect, whether it is completed or incompleted. Incompleted. So it is more important. Then next point is the lead or the first sentence and should grab the reader and say concisely what is happening. For example, if the headline is Star Publishing release new partition novel, the first sentence might be something like Star Publishing Limited today released their first partition novel by celebrated the writer Monto, and it expands the headlines enough to fill in the some of the details and bring reader further into the story. The next one or the two sentences should then expand up to the lead. तो जब भी ये हेडलाइन लिखा जाता है या हेडलाइन लिखने के बारे में जब वो रीडर को ग्रैब करती है, ग्रैबर बनाती है, तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए कि जैसे हेडलाइन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, स्टार पब्लिशिंग मीन्स किसने पब्लिश किया है? स्टार पब्लिशिंग रिलीज न्यू पार्टीशन नॉवेल, स्टार पब्लिशिंग ने किया है। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड, या हम बोलते हैं कि अमूल इंस्टीट्यूशन, या पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मीन्स ये आपको क्या बताया है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। जब हम WHO की बात करते हैं तो वो हेल्थ से रिलेटेड है। जब हम अमूल की बात करते हैं तो वो रिलेटेड है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। जब Yes, यहाँ पे ma'am. आपको बताया गया कि नॉवेल, Yes, ma'am. आपको कोई नॉवेल लॉन्च हो रहा है या नॉवेल पब्लिश हो रहा है, तो उसको किसने पब्लिश किया है, उसके पीछे पब्लिश करने वाला उस व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन कौन है,
तो वो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। आगे बताया जाता है, आगे बताया जाता है कि वो राइटर कौन है। कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसका राइटर का नाम लिखना जरूरी है, हाँ या ना? हाँ या ना? कोई भी Yes, बुक ma'am. आप कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो तो आपको उस राइटर का नाम पता होना चाहिए कि किसने लिखा है। ज्यादातर हमको नाम पता नहीं रहते, लेकिन हम पढ़ते जरूर हैं। पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं ना, नॉवेल पढ़ रहे हैं या स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या Yes. कुछ भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति का, जो राइटर ने ये बुक लिखा है, उसका नाम हमारे जहन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, पर शायद याद नहीं आ रहा हो, पर हमें पता होता है कि हाँ, इस राइटर ने ये बुक लिखा है। So it should be very clear to all the readers. समझ में आया? Do you understand? समझ में आया? Yes, ma'am. आगे बात करते हैं. The press release body Yeah. copy should be compact. Avoid using very long sentences and paragraphs, and avoid repetition and overuse of fancy languages and the jargon. Let's try for simplicity and no wasted words. कि जब भी कोई स्टोरी लिखना होता है या प्रेस रिलीज लिखना होता है, तो डोंट यूज द जार्गन. जार्गन मीन्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स. फिर हम बोलते हैं कि लंबी लंबी लैंग्वेजेस या लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की जगह पे कैसे लिखेंगे? प्रिसाइज सेंटेंसेस लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? प्रिसाइज लिखेंगे. फिर ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करने की वजह से क्या हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो खो जाती है. कि फॉर एग्जाम्पल स्टोरी कहने का भी एक ढंग होता है, स्टोरी पढ़ने का भी एक ढंग होता है, स्टोरी लिखने का भी एक ढंग होता है. फॉर एग्जाम्पल हम आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ. अभी मैं आपको ये बताऊं कि टर्टल और टॉर्टोइज और टर्टल की स्टोरी सबको पता है. सॉरी, रैबिट Yes, और ma'am. टॉर्टोइज की स्टोरी सबको पता है, हाँ या ना? हाँ Yes, या ना? ma'am. हाँ. पर उसका कहने का तरीका, जो हम बोलते हैं कि जो उसको Yes, बहुत अच्छी तरीके से कहेगा या दिल से कहेगा या उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देगा, तो वो स्टोरी हमको ज्यादा पसंद आएगी. वो स्टोरी हमको ज्यादा पसंद आएगी. ये स्टोरी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. अगर हम बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं या yes, ma'am. बच्चों को सिखाना Yes, ma'am. चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं, हाँ, एज 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 का भी डिफरेंस होता है, छोटे बच्चे हैं, तो उसको बताने के लिए हम लंबा लंबा सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे या छोटे छोटे सेंटेंसेस? लंबे लंबे या छोटे? Shorty sentence. छोटे सेंटेंस. छोटे हाँ, छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे कि वो जल्दी से बच्चे को समझ में आ जाए. इसी तरह से जब प्रेस रिलीज लिखा जाता है, तो you have to utilize the precise sentences which can grab the reader, which can understand the reader को वो समझ में आए. Okay. The next point is deal with actual facts. अभी डील विथ एक्चुअल फैक्ट्स मतलब क्या? द इवेंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, पीपल, टारगेट, गोल्स, प्लान्स एंड प्रोजेक्ट. Try to provide the maximum use of concrete facts. This is the news. A simple method for writing an effective press release is to make the list of following classifications: who, what, when, where, why and how. कि जब भी प्रेस रिलीज लिखा जाता है तो दे हैव टू डील विथ द एक्चुअल फैक्ट. नहीं कि हम बोलते कि कोई इमेजिनरी स्टोरी की हम बात करते हैं, तो स्टोरी इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग दैट नॉवेल और बुक और दैट एक्सपीरियंस, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, दैट इज रिलेटेड टू द रियल लाइफ, दैट इज रिलेटेड टू द fact, that is related to the true story. So here once again that press release is related to the true story. कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम बोलते कि फॉर एग्जांपल हम जैसे फॉर एग्जांपल हम अंबानी का या हम बोलते कि जो रिलायंस की बात करते हैं, जब उसमें प्रेस रिलीज लिखा जाता है, when it started, who is considering it now, that who is handling right now, how many workers are there, that how many people do get that proper job, क्या टाइमिंग वगैरह वगैरह, उसका पूरा का पूरा डिटेल उस प्रेस रिलीज में होना चाहिए. तो जब भी प्रेस रिलीज लिखा जाता है तो हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये क्वेश्चन मीन्स, ये क्वेश्चन के साथ मीन्स जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी उसकी सही इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी जानी चाहिए. समझा? समझा? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेट द 5 WS. उसका मतलब क्या? हु,
what, when, where, why, and how should tell the reader everything they need to know. कि जब भी कोई रीडर ये प्रेस रिलीज पढ़ता है तो जब when कब स्टार्ट हुआ, what क्यों स्टार्ट हुआ, when कब से स्टार्ट हो रहा है, फिर where कहाँ स्टार्ट हो रहा है, why इसका रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड इट, एंड देन हाउ किसने स्टार्ट किया और किस तरह से स्टार्ट किया। समझना है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मूवी देख रहे हो तो मूवी देखने के लिए जब आप हम बोलते हैं कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, या थोड़ा सा हम बोलते हैं कि बैकग्राउंड ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, डू अंडरस्टैंड। Yes, जैसे फॉर ma'am. एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पानीपत, पानीपत ही मूवी है, तो पानीपत की लड़ाई के बारे में आपको थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री में जब पढ़ चुके होंगे तभी आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वेन एवर द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, you can understand in a much better way. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि 5W से स्टार्ट होने वाले सभी क्वेश्चन का सही इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। अभी आगे बात करते हैं with the basic define, fulfill in the gaps with the information about the people, products, items, dates and other things related with the news। कि जब भी न्यूज में वो प्रेस रिलीज में दिया जाता है तो उसका डेट दिया जाता है, प्रोडक्ट बताया जाता है, आइटम्स बताया जाता है और किस मीन्स लोगों के साथ जुड़ा उसका रिश्ता बताया जाता है और उसका डेट बताया जाता है। That if your company is not the main subject of the news but the source of press release, make it clear in the body। अगर कंपनी ने उसमें मेंशन नहीं किया है न्यूज में तो प्रेस रिलीज वो क्लियर हो जाता है। देन कीप इट द शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, कि सबसे छोटा और क्लियर वाला होना चाहिए। The more newsworthy you make the press release copy, the better chances of it selected by the journalist for reporting, and find out the newsworthy means to given the market and use this knowledge to hook the editor or the reporter। कि जैसे प्रेस रिलीज न्यूजवर्दी की तरह लिखा जाता है, या हम बोलते कि न्यूज की तरह उसको लिखा गया तो उसमें ज्यादातर कौन चेंज कर सकता है, कौन किसके पास वो दिया गया होता है प्रेस रिलीज चेंज करने के लिए, किसके पास दिया जाता है वो, Journalist. जर्नलिस्ट के पास, एडिटर के पास दिया जाता है। फिर उसमें उसको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं और फिर जर्नलिस्ट को भी रिपोर्टिंग करते टाइम उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, न्यू पॉइंट इज, मेक इट क्लीन, क्रिस्प एंड एप्लीकेबल टू योर ऑडियंस। और sir, whoever you send your press release has a dozen just like a his or her inbound, just waiting to be ignored. If you want those to be chosen, it's not to be good. Not only does it have to be good, but it has to be as close, ready to praise for as possible. When editor looks at the piece and he or she is thinking from the first second about how long it's going to take them to get into the frame. If your work is full of errors, lacking content, and just need to be revised, they are not going to waste their time. So make sure you have good grammar, all the basics, and have something to write about। कि कभी हम जब भी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख रहे होते हैं तो उसके लिए हमारा ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। ओके, ग्रामेटिकली सेंटेंस कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए व्हेन वी आर राइटिंग एंड व्हाट वी आर स्पीकिंग। कि जब आपके प्रेस रिलीज में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होगी तो वो जर्नलिस्ट ज्यादातर वो चेंज नहीं करेगा, वो प्रिंट आउट नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, आपको वापस देगा, वापस आप चेंज करके उसको दो। तो उससे पहले हमें ख्याल रखना है, कंपनी को ख्याल रखना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना हो, बेसिक थिंग्स उसमें सब कुछ कवर किया जाए। समझा, समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। व्हाई शुड दिस पीपल केयर व्हाट यू हैव टू से, एंड इफ यू आर सेंडिंग इट टू द राइट ऑडियंस इट विल बी ऑब्वियस। इफ यू आर नॉट, वेल व्हाई are you wasting your time? Give the right people the piece of news
and you are both right track if you are giving to the right person. कि for example जब आप किसी को जो कुछ भी आपने प्रेस रिलीज में लिखा है तो उसके लिए आपको उसको चेक करवाने के लिए हम बोलते कि उसको रिवाइज करने के लिए सही आदमी के पास उसका पहुंचना जरूरी है। जब वो सही आदमी के पास पहुंचता है तभी वो रिवाइज होता है, तभी वो चेंज होता है और तभी वो पब्लिश होता है। समझ में आया? समझ में आया? वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, Yes, ma'am. लेकिन एडवर्टाइज कह सकते, बट इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि लेकिन जो सही है वही बताओ, सही है वो बिकेगा। हम बोलते हैं ना कि सच का मीन्स हम बोलते हैं कि सच होगा वही सामने आएगा, वही यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। दे विल केयर मोर इफ यू सेंड इट इन द मॉर्निंग, दैट गिव्स देम टाइम टू पैड योर पीस इनटू द गॉड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन एंड बी कंसिडरेट। कि जब भी आपको जर्नलिस्ट को प्रेस रिलीज देना है, दैट choose the time for giving them in the morning because morning is the best time. So during the throughout day they can revise it, they can rechange it, and after onwards the next day it will be I think published. If you are giving them in the evening or night, they can't do the work more on it. कि अगर आपने उसको शाम में दिया है या रात को दिया है तो वो उस पर ज्यादा काम नहीं कर सकेगा। समझा? समझा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाई टुगेदर। टाई इट टुगेदर, अभी उसका मतलब क्या? प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिंक दैट सपोर्ट योर प्रेस रिलीज। Does the company you are selling have additional information online that readers may find useful? It that if you are nervous about what you have got, do some research what already out there, and someone probably wrote something on event just like the one you are covering. PR webs and PR newswires are good places to start. तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी कोई प्रेस रिलीज लिखा जाता है उसको दिया जाता है पब्लिशिंग के लिए, तो उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिखना चाहिए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने से प्रेस प्रेस रिलीज का वेटेज बढ़ता है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि उसके लिए आपको कोई सर्च करना पड़े कंपनी को, या फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्ट के बारे में लिखना है तो उसके लिए प्रोडक्ट के बारे में आप लिख रहे हो तो उसके लिए प्रोडक्ट के कंपटीशन में दूसरा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में है, उसका क्या प्राइस है या कैसे हो उसको बेचा जाता है या उसको खरीदने वाले लोग कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन एज अ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन आपको निकालनी पड़ती है। उसके बाद उसके लिए प्रेस रिलीज लिखा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। तो यहाँ पे अभी और क्या बताया है? देन PR web and PR news wire are good places to start. तो पब्लिक रिलेशन वेब एंड पब्लिक रिलेशन न्यूज वायर ये उसके लिए बेस्ट थिंग है कि उसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ के दिखाऊं प्रेस रिलीज कैसा लिखा जाता है या मैं आपको फॉर्मेट भेजूं? व्हाट यू से? व्हाट यू से? हेलो, Ma'am, पढ़ के दिखाओ. पढ़ के दिखाती हूँ आपको। एक एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास बुक में है, मैं आपको पूरा नोट्स भेजती हूँ तभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो नोट्स के तौर पे आपको पता चल ही जाएगा कि ये प्रेस रिलीज इस तरह से लिखा गया है, लेकिन मैं उससे पहले आपको पढ़ना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फॉर इमीडिएट रिलीज मीन्स प्रेस रिलीज दैट कॉम्पिटिशन इज हेल्दी सेज वड़ा पाव स्टैंड क्वीन। मीन्स हेडलाइन देखा आपने, कॉम्पिटिशन इज हेल्दी सेज वड़ा पाव स्टैंड क्वीन। That Mumbai, Maharashtra, November 12, 2016, increase the competition the local vada pav stand market should welcome, according to the operator and the popular vada pav stand अनीता टेस्टी वड़ा पाव। अभी अनीता का ये टेस्टी वड़ा पाव यहाँ पे बताया गया है कि उस मीन्स लोग वहाँ पे जाने चाहिए, तो उसकी वजह से क्या यहाँ पे लिखा गया है? कॉम्पिटिशन इज हेल्दी सेज वड़ा पाव स्टैंड क्वीन। मीन्स मार्केट में हमें यहाँ पे जगह फॉर एग्जांपल जैसे हमारे महाराष्ट्र में
या विदर्भ में सॉरी महाराष्ट्र में नागपुर, नासिक वगैरह ये जो कुछ स्टेट्स है वहाँ पे वड़ा पाव फेमस है। कहीं पे भी जाओ आपको वड़ा पाव मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस करके या हम बोलते कि आप उत्तर भारत में चले गए तो वहाँ पे आपको वड़ा पाव इतना फेमस या वड़ा पाव आपको नहीं मिलेगा जरूर, पर उसका हम बोलते कि जो पर्टिकुलर टेस्ट वगैरह वगैरह होता है जो हमारे महाराष्ट्र में मिलता है वैसा टेस्ट वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फेमस बात है। फेमस है ना वड़ा पाव हमारे महाराष्ट्र का क्या बात है, फेमस है। तो इसी तरह से Yes, ma'am. ओके, तो आगे का पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। The 12 years old Anita Wagmare has been selling her homemade brand of vada pav from the footpath in the front of her parents' Churni Road home for 18 months and has seen highs and lows of the trade. That stand come and go, says Miss Wagmare, but where the more stands around the vendors are more serious. They try harder and make better products that gives our customer confidence and self go up. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक लड़की है, 12 साल की लड़की अनीता वाघमारे, जो अपना घर में बनाया हुआ वड़ा पाव रास्ते पे फुटपाथ पे बेच रही है। अभी आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ पे भी कभी कभी दिखा दे रहे कि एक होटल या एक रिसोर्ट के आसपास ही कई बहुत सारे होटल्स या रिसोर्ट हैं, दिखाई देता है दापोली में, हाँ या ना? Yes, हाँ ma'am. नहीं, ओके ओके। बाकी जब हम बोलते कि वड़ा पाव की गाड़ी या लॉरी वगैरह हम जब बात करते तो मुंबई में हर जगह पे ठेला लगा हुआ है, वड़ा पाव का ठेला लगाते हैं ना। तो यहाँ पे एक लड़की ऐसी है मीन्स जिसका इकोनॉमिक Yes, कंडीशन ma'am. ठीक नहीं है, पर वो भी फिर भी वो अपना कोशिश उनका जारी है कि अच्छे से अच्छा वड़ा पाव मार्केट में वो बेच सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जितना कंपटीशन होगा तो उतना थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है कि नहीं, ये बात यहाँ पे बताई गई है और वो इनडायरेक्टली बताई गई है। जितना कंपटीशन का, फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आपको ये पता चल गया कि दूसरे ने भी हमारे जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया तो जो पहला वाला इंसान होता है तो उसको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. हाँ, तो दैट इज द रीजन। इसके लिए स्टैंड कम एंड गो, स्टैंड कम एंड गो ये शब्द इस्तेमाल किया है। आगे का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। इन द रिसेंट मंथ द नंबर ऑफ वड़ा पाव स्टैंड्स इन द चर्नी रोड हैज राइजन from 10 to 15. The expert believes this trend will continue and with the possibility of 2 or even 3 new stands before the end of summer. तो जितने भी एक्सपर्ट होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि चरनी रोड पे, मुंबई में चरनी रोड पे बहुत सारे वड़ा पाव वाले हमको दिखाई देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो ट्रेंड है वड़ा पाव का वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा उसमें बताया गया है कि एक्सपर्ट की राय ये है कि उससे ज्यादा, अभी तो सिर्फ 10-15 है, उससे ज्यादा भी होना चाहिए कि मीन्स लोगों को हर एक, हम बोलते हैं कि जिसका ज्यादा पसंद आए वो खाएगा। तो वो ऑब्वियसली कि जैसे हमारे टेस्ट पे डिपेंड रहता है कि हमें जहाँ जो चीज पसंद आती है वो हम खाते हैं। Then Miss Wagmare feels that the stable supply of vada pav will also benefit the area's company. कि कंपनी में जो लोग काम करने वाले, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर हो या हम बोलते कि छोटे मोटे हम बोलते कि वर्कर्स हो या एम्प्लॉय हो, तो आपको ऑफिस खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये ठेले पे नजर आएंगे। आते हैं कि नहीं? मुंबई में तो ज्यादा आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग टू Yes, मी? ma'am. मुंबई Yes, ma'am. में ऑफिस खत्म होने Yes, के ma'am. बाद ठेले पे लोग ज्यादा नजर आते हैं कि नहीं आते? ऑब्वियसली आते हैं। Yes, yes, ma'am. कॉलेज बॉयज भी, आई मीन हम बोलते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं, काम करने वाले भी आते हैं, मजदूर लोग भी आते हैं, सब टाइप के लोग उस मीन्स हम बोलते हैं कि ये ठेले पे आते हैं। तो दैट इज, और मीन्स उसकी माँ है मिसेस वाघमारे, उन्होंने क्या बताया कि जब आपका सप्लाई अच्छा हो वड़ा पाव का, कि सप्लाई आप अच्छा हो तो वो एरिया की कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम बोलते हैं कि सर्विसेज बेस्ड दिया जाता है, कि फॉर एग्जांपल रिसोर्ट लेके बैठे हैं, आपने ऑर्डर दिया है, 1 घंटा आपका ऑर्डर नहीं आएगा तो आपका हम बोलते हैं कि पेशेंस खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा कि नहीं? कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऑर्डर दिया है, जब हम Yes, ma'am. होटल में जाते हैं
तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना वेट कर सकते हैं वहां पे, कितना वेट कर सकते हैं हम लोग, कितना वेट कर 10 सकते हैं? 10 मिनट और 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। पर उससे ज्यादा हो गया तो, उससे ज्यादा हो गया तो हम पूछेंगे ना, क्यों भैया अभी और देर है, क्यों भैया अभी और देर Yes, है। ma'am. तो continuous supply is also stable supply, and continuous supply is also for companies economy beneficial. The people know that if they are hungry, the Charni Road is the place to come. With the plenty of vada pav stands on this road, and it doesn't matter if if some of the vendors take the day off, the customer is never disappointed, so always they come back. उनको पता है कि चर्नी रोड पे ऑफिस खत्म होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी वड़ा पाव की गाड़ी है, तो वहाँ पे आपको वड़ा पाव मिलेगा। और जहाँ पे जब बेस्ट मिलता है, बेस्ट सर्विसेज होता है, क्वालिटी अच्छा होता है, वहाँ पे लोगों का, हम बोलते हैं कि क्या होता है, गर्दी ज्यादा होता है। So Amita Wagmare is the sole trader of vada pav and occasional bel puri. Her stand at 223 Charni Road is usually open on the weekends, after the school and weekends, and except when she is playing with her friends and watching movies. तो यहाँ पे सिर्फ ये बात आपको बताई गई है प्रेस रिलीज को, मीन्स क्या बोले कि एक कंपनी ने ये प्रेस रिलीज लिखा है, तो कंपनी के आसपास जो हम बोलते कि जिसका बेस्ट है, मीन्स वाघमारे, एक हम बोलते कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वाघमारे, उसका वड़ा पाव बहुत अच्छा है, उसने वो मीन्स कंपनी ने रिकमेंडेड किया है कि बाकी के लोग भी वहाँ पे जाने चाहिए। समझ में आ रहे, समझ में आ रहे, वड़ा पाव की Yes. गाड़ी वगैरह, ये कंपनी Yes, का ma'am. है कि उसका भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द थिंग कि जैसे आपको पता होगा कि कंपनी, कुछ कंपनी में कैंटीन भी होते हैं कि नहीं होते हैं? कुछ कंपनीज में कैंटीन भी होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली इन द बिग सिटीज। अगर बड़ी कंपनी हो तो वहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल होते हैं, और कैंटीन थ्रू उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है। समझा? Yes, समझा? ma'am. ओके। और लास्ट Yes, में, ma'am. लास्ट में उसका एड्रेस दिया है। तो प्रेस रिलीज इस तरह से लिखा जाता है, आई विल सेंड यू द फॉर्मेट, I will send you the more formats. At least you can understand in a much better way. समझा है? Yes, ma'am. तो अभी Yes, आपको ma'am. जैसे किसी ने पूछा कि अभी आप प्रेस रिलीज लिख सकते हैं क्या, तो आपको समझेगा ना किस तरह से लिखना है, किस तरह Yes, से ma'am. लिखना है। ओके। लेटर टाइप है, पर लेटर में जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा लिखते हैं, वैसा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। और हम बोलते हैं कि जो ट्रू है, फैक्ट है, वही लिखना है। सो दैट इज द थिंग। ओके ओके। Yes, ma'am. Okay. किसी किसी को क्वेरी है कि ये पॉइंट समझ में नहीं है, प्रेस रिलीज मतलब क्या, या उसको रिलेटेड टिप्स जो मैंने अभी डिस्कस किए वो मतलब क्या, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोलिए, मैं फट झट से आपको वो पॉइंट क्लियर करती हूँ। आपने शायद नोट डाउन किए हैं या नहीं किए हैं? नोट डाउन करने की आदत रखिए। Yes, ओके, ma'am. Okay. वी शैल स्टॉप हियर। मैडम कॉलेज 8 मार्च से शुरू होंगे ना? हाँ, 8 मार्च से स्टार्ट होगा सुबह में।